नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पर शुक्रवार के दिन और मोस्ट स्पेशली पॉलिसी के बाद, पॉलिसी ऐसी जिसने शायद आपकी जो अपेक्षाओं का सबसे ऊपर वाला जो अंश था ना, जिसमें आप 50 बेसिस पॉइंट का अगर आप देखिए रेट कट सोच रहे थे, हालांकि वो भी था, ऐसा नहीं था कि वो कहीं भी अपेक्षाओं में नहीं था, वो था, बट उसने कंप्लीटली शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया। इकोनॉमी को आरबीआई का बूस्टर डोज, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें सही शायद एक लाइन का चुनाव किया गया है और अब तक करीब करीब 4 ट्रांचेस में, अब आप सोचिए कि करीब 1% की रेट की कटौती हो चुकी है। 25,027 मेरे ख्याल से सबकी अपेक्षाओं में जो था वो था करीब करीब 25 बेसिस पॉइंट का कट। ये प्लस जिस प्रकार की इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री और इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखें और नीचे रखा गया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। बाजार ने उसको हाथों हाथ लिया। वी आर एट नाउ डे हाई एट 25026। पर एक बताऊं मैं आपको, बावजूद इसके बाजार टेक्सचर जो था ना, वो एग्जैक्टली डेटा बेस था, डेटा के बेस पे था। आइए जरा सुबह की एक बार लेवल्स लेके आइएगा। टफ जोन वही था जो रहा। पहले सुबह मॉर्निंग हाई क्या था? करीब करीब 24,800 का क्लस्टर डिप आया। कहां तक? जरा निफ्टी का जो इंट्राडे डिप था वो करीब 650-630 तक का था। फर्स्ट ट्रांच में वही रेजिस्टेंस आया, कोलैप्स हुआ निफ्टी और बेस 1 पे आके टिका और वहां से इजेक्ट कर गया। खैर, मोटे तौर पे बात थी कि हमें डिप्स को बाय करना है टुवर्ड्स बेस 1, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट वाज दैट कि वंस वी विल क्रॉस 832, a swing towards 878, 923 and 969 looks possible। पर अब जानते हैं ये पॉलिसी जो है वो आपकी मेरी अपेक्षाओं से इतनी बेहतर रही कि बाजार में कंप्लीट शॉर्ट ट्रैप और फ्रेश बाइंग है। देखिए, फर्स्ट ट्रांच में जब पॉलिसी के बाद एक सेलिंग आई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफआईज ने हायर लेवल्स पे एक बार माल छोड़ा, बट मेरे ख्याल से आज दिन ही कुछ स्पेशल था, डिफरेंट था। वी आर एट डे हाई। देखिए, अब मैं ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, अब ट्रेड बचा है नहीं। अगर मैं एक डे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बहुत कुछ बचा है नहीं अब। Giving us a lot of headlines. Okay, I wanted you to clarify things on the liquidity front. In the last few weeks, the repo rate, the call rate was not at the repo rate. You gave enough liquidity, and the call rate was 25 basis points below the repo rate. Now that you have given a 50 basis cut, will you use liquidity in such a way to align the call rate more to the repo rate? Which means you will do more VRRs, reverse repos, or will the reverse repo have to be suspended because your 40 billion short positions have to be, will mature? So if you can give us a little more color on liquidity, and on the stands itself, is it fair on the part of the market to assume an extended pause, or because the positive real rate, I mean, if you assume that that 1.4 to 1.9 positive real rate is what you are also going by, then with inflation at 3.7, you still have space to cut. So should the market assume that the terminal rate can still go down after the pause? Yeah, so first of all, thank you, all of you, for coming here as usual and taking our message to everyone across the country. So thank you very much. You have asked 3 questions in 1 question, but we'll try to attempt to answer all of them. So first question is a very good question. In fact, what do we do with liquidity? Where do we actually maintain now the call rate? The call rate today is hovering at the lower end of the LAF as it was till yesterday. So it was at about 5.75%. Whether we now maintain it at 5.25 or at the policy rate, which is at 5.5. That's, as I said, we'll see how the situation goes. Of course, liquidity is abundant, and if we do not do any VRRs, then it's going to stay at 5.25. If we do VRRs, then, we can bring it anywhere between, depending on the amount. So we'll see, how the situation evolves, and we'll take a call. We have not really given it a thought on that, so we will decide, and you will come to know, in the coming few days. I'll not be able to give you a very precise answer, but having the policy at 5.5
and the stance, now going to neutral. So all that will, certainly come in the picture. We will take a call as to where, we will try to have the call rate. The second question is on where do we see the terminal rate. The MPC, I think, has very clearly, articulated that in the statement, in the resolution that has come in. We have changed the stance from accommodative to neutral. And it has mentioned that there is now very limited space for the monetary policy, actually, given the current circumstances. And you are aware of the current circumstances, which is that growth is at about 6.5%. Inflation, we are projecting at 3.7% for this year. And next year, it's above 4, it's 4.5%, or roundabout. So given these current, if these were to play out, there is very limited space, is what, MPC says, and that's why it has been reduced now. We have changed now to neutral. MPC also states that we will continue to monitor the incoming data, and basis that, given especially the uncertainties, what way now we will move will depend primarily on what the data suggests to us. There was a third question which what was your? That's it. Thank you. So I've answered. That's what I wanted. Yeah, thanks. If you can allow me another question, I will. Yeah, we'll come back later. Come back and see. तो ये वही प्रश्न था जो लता मैम का, जो कल हम इस मंच पे बैठ के बात भी कर रहे थे, क्योंकि जो लिक्विडिटी आरबीआई ने बहुत सिस्टम में झोंकी थी, और लाजमी है कि इसके चलते अगर आप देखें जो कॉल रेट्स थे वो काफ़ी नीचे आ गए थे. अब फर्दर जो रेट काटे गए हैं, उसके बाद मैंने जो प्रश्न किया था वो ये था कि कॉल रेट्स फर्दर नीचे जाएंगे, आप लिक्विडिटी की और जो मेंटेन करते हैं आप उसे क्या थोड़ा सा कम करेंगे. तो उन्होंने यही कहा कि अभी इस पर बहुत बड़ा अगर आप देखें ठोस विचार नहीं किया गया है. 3-4-5 दिन में, हफ्ते भर में सिचुएशंस काफ़ी क्लियर हो जाएंगी. तो इट्स ऑल अबाउट आई थिंक लिक्विडिटी. जो प्रश्न मैम का केंद्रित था वो इस मंच पे कल हम बात भी कर रहे थे. खैर, निफ्टी 25,016 पे एक बार स्टैट्स देखते हैं. देखिए इस प्राइस का मतलब क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ और इस बीच चलना पड़ेगा अब हमें एक और, अगर आप देखें, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में. जी हाँ, आज JNK में 46,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी. US BRL प्रोजेक्ट को भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी आज, और करीब 43,780 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन. ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो देश के उस हिस्से से जुड़ेंगे जो अब तक रेल सेवाओं से, अगर आप देखें तो जुड़ा नहीं था. पर आज एक महत्वपूर्ण दिन, और उस ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और देखिए एक इंजीनियरिंग का अजूबा है ये. मतलब चिनाब ब्रिज पर लंबाई इसकी करीब 1351 मीटर की है, और ये दुनिया का सबसे, अगर आप देखें, ऊंचा पुल, रेल पुल. ऊंचाई जो इसकी है करीब वो 359 मीटर. और जम्मू कश्मीर को देंगे 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पीएम मोदी इस वक्त. ठीक है, आपकी स्क्रीन पे देखिए वो जो शुरुआती ट्रायल ट्रेन होती है वो आपकी स्क्रीन पे वो इस ब्रिज पे चलती हुई लगभग 359 मीटर इस पुल की ऊंचाई है. मतलब वाकई आपके लिए एक भारतीय के तौर पे एक बहुत ही गौरवशाली, अगर आप देखें तो ये पल है. और इन 2 पर्वतों के बीच का जो हिस्सा था ना, वो पार्ट दिया भारतीय इंजीनियर्स ने, और इसी पे वो ट्रेन अब देश के उस भाग से जुड़ी रहेगी जो अब तक नहीं जुड़ा था. चलिए सोनी जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार कर देता हूं. अभी तक नमस्कार दुआ सलाम भी नहीं हो पाई है. अब डेटा क्या देखें, एक बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेड, आई मीन लेवल टू लेवल 24,800 पार किया आपने, 900 पार किया आपने, 25,000, तीनों को स्ट्राइक कर दिया. दिन के लिए कुछ बचा है क्या? और दूसरी बात, अगर मुझे पोजिशनली कैरी करना है तो मुझे कितना वैल्यू एट रिस्क रखना पड़ेगा? क्या कहाँ पे एक रीजनेबल मान के चलूँ कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ तो पोजीशन को कैरी करूँ, अदरवाइज यहाँ निपटा के जाऊँ? आपका विचार क्या कहता है?
जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सभी दर्शकों को। देखिए, मुझे लगता है दोनों इंडिसेस में अभी फोकस सिर्फ निफ्टी पे रखते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी का वो मूव आ गया है, ब्रेकआउट दे दिया है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो सिर्फ निफ्टी पे ही यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस करके डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि 25,050 25,100 का एक पिछली सीरीज में रेजिस्टेंस था। ये सीरीज में उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया नहीं, क्रॉस किया नहीं, आज आके फाइनली टेस्ट कर रहा है काफी टाइम के बाद। सेम वे में कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी वो ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी की बारी है अभी, मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ से रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा 25,100, पोजिशनली टुवर्ड्स 25,300 25,450 लेवल्स टेस्ट कर सकता है जून सीरीज में। तो यहाँ पे निफ्टी में फिर भी मुझे लगता है पोजीशन ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल लग रहा है। 24,900 पे जो एक कल का रेजिस्टेंस था, आज वो सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। अगर वही होल्ड करता है 24,900 स्पॉट के अनुसार ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये होल्ड करता है तो आपको पहले 25,100 के रेजिस्टेंस के ऊपर 25,300 के पहले टारगेट्स नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स के लिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर चाहे, अगर कोई ऑलरेडी लेके रखे हैं, बट ज्यादा यहाँ पे निफ्टी पे ले सकते हैं। तो बाई कीजिए निफ्टी, 25,300 टारगेट्स, 24,900 स्टॉप लॉस। ओके, देखिए मैं सुबह का जो विचार सोच के आया था, डॉक्टर साहब जरा मेरी निफ्टी बैंक की और निफ्टी के दोनों की रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा। टॉप टारगेट वॉज 24,969, वो हो गया। और बैंक निफ्टी में द मोमेंट यू विल क्रॉस 56,161, a swing towards 56, प्लीज बैंक निफ्टी की प्लेट लेके आइएगा, a swing towards 56,633, वो हो जाएगा और वो हो गया। मैं यहाँ पर अब अपना अगर आप देखें तो आप कोई फ्रेश विचार नहीं रखूँगा, ठीक है। बाकी 2 बजे के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्लियरली अगर हम 25,000 पे रुक रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं और मोर लेस 24,900 950 पे, तो वी विल जनरेट फर्दर अपसाइड। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर हम इवन 56,200 56,300 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहे हैं तो वी विल जनरेट अपसाइड। देखिए बात सिर्फ निफ्टी बैंक की नहीं है, बात यह है, लुक एट स्टॉक फ्यूचर्स। HDFC बैंक एट ऑल टाइम हाई, शानदार मूव यहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई हैं। खैर अब एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ये 3 कॉल्स लेंगे और फिर कुछ सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। और अब एक काम करते हैं, स्टॉक्स पिक करना शुरू करते हैं। देखिए अभी भी मैं बताऊं आपको, आप कहेंगे 1%, 2%, 3%, 5%, लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को इस लिहाज से देखें ना कि उन्होंने क्या ब्रेक किया है, तब आपको लगेगा कि बाजार में भी कितनी तेज़ी बाकी है। बेटर टू ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स नाउ, अब वो बताएंगी सोनी जी बताइए आपके 3 कॉल्स इस बात की क्या है मैम? जी वीरेंद्र जी, आज तीनों के कॉल्स हमारे ऑफिशियल रिकमेंडेशन हैं। पहला कॉल बाई है JSL में, जिंदल स्टील पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है JSL ने, काफी टाइम से वो 675 680 का एक रेजिस्टेंस पकड़ रहा था, आज फ्रेश उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे हमें लगता है कि JSL फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 675 का। पहला टारगेट है 710 और उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन टुवर्ड 715 718 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो ये पहला बाय रिकमेंडेशन। दूसरा बाय यहाँ पे है पूना वाला में, अगेन फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है डेली चार्ट्स पे। फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी पूना वाला पे। यहाँ पे फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस रहेगा 408 का, टारगेट है 430 और 435, 2 टारगेट्स है यहाँ पे। तीसरा रिकमेंडेशन है ट्रेंड पे। ट्रेंड पे एक तो काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स शुरुआत हुई थी जून सीरीज में 97%, और एक जो 5500 5600 सपोर्ट को बार बार टेस्ट करते हुए वहां से बाउंस कर रहा था, आज बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे अपने 200 डेमा के ऊपर सस्टेन करते हुए। ट्रेंड फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। 5650 का यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्यूचर्स पे। पोजिशनली मुझे लगता है टारगेट टुवर्ड 6000 6080 के 2 टारगेट्स यहाँ पे जा सकते हैं। ओके 3 ट्रेड हो गए यहाँ पर, और यकीन मानिए सोनी जी, मैं इनमें से कुछ ट्रेड्स को रीड ही कर रहा था। ट्रेंड तो देखिए अब इतना चल चुका है 2%, लेकिन लुक एट पूना वाला फिनकॉर्प, एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए, मैं इसको ही रीड कर रहा था और ये अभी 25 अप्रैल का स्विंग हाई काट के आया है। यहाँ पे 430-35 का कॉल, देखिए ब्रिलियंट स्टॉक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा सोनी जी, अगर मैं
रादर देन फ्यूचर्स अगर ऑप्शंस पे फोकस करूं, क्योंकि मैं भी डेटा रीड कर रहा था, इट्स ए मल्टी मंथ ब्रेकआउट, जुलाई 2024 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। ये कोई कॉल ऑप्शन है आपके जहन में इसकी जो इसको हम प्ले कर सकते हैं? जरूर, जो हमने ऑफिशियल रेकमेंड किया है पूनावाला में वो कॉल ऑप्शन के माध्यम से ही किया है, बट 430 कॉल ऑप्शन यहाँ पे टेस्ट किया है। यहाँ पे चाहे तो 9 रुपए के करीब जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है बाई कर सकते हैं। 5 रुपए 50 पैसे की तरफ एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए यहाँ पे टारगेट आपका रहेगा 15 से 17 का यहाँ पे टारगेट है, और यही एग्जैक्टली हमने शेयर किया है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा पोजीशन बिल्ड हो रहा है। अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग टुवर्ड्स 430 के लेवल्स तक भी काफी एग्रेसिवली हो रही है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयारी में है, और ये शॉर्ट टर्म ही प्लेयर करेगा। सो यहाँ पे आप 430 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 430 की कॉल ऑप्शन मूव स्ट्रॉन्ग। बात करते करते ये 1.5 रुपये का मूव इसमें और आ गया, तो क्या शानदार मल्टी मंथ ब्रेकआउट। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी स्टिल वो ट्रैजेक्टरी 24,900 की 80 की पकड़ के चल रहा है और डी हाई पर अभी भी ट्रेड करता हुआ। बताइए सोनी जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ मैक्स हेल्थ केयर पे 1180 कॉल ऑप्शन। ये बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 18 रुपए का। पहला टारगेट है 40 रुपए, दूसरा टारगेट रहेगा 40 से 52। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 20 डेमा के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। पोजिशनली मुझे लगता है टुवर्ड्स 1200 और 1220 के दो टारगेट्स यहाँ पे नजर आ सकते हैं पोजिशनली फ्यूचर्स पे। सो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे 1180 कॉल ऑप्शन पे। 27 रुपए पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 18 रुपए का, टारगेट है 40 और 48। चलिए, मैक्स हेल्थ केयर आपका बाय कॉल इस वक्त का। हाँ, पिछले 20-25 मिनटों में इसमें भी मोमेंटम पिक कर रहा है, तो 3 ट्रेड्स हो गए आपके। एक ट्रेंड पूनावाला फिल को आप बात करते करते डे हाई पर 418 स्ट्राइक करता हुआ, और एक मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स को भी मैं रीड कर रहा था, पिछले 10-20 मिनटों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट किया है इसने। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।